A very good evening, दोस्तों. My name is Shailesh Singh. Today we are discussing the Hindu newspaper of the 27 October. साथियों, हम सभी को मालूम है कि द हिंदू न्यूज़पेपर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एज वेल एज जनरल थॉट एक थिंकिंग बिल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल एवं इंटरनेशनल न्यूज को कवर किया जाता है. तो ऐसी एक पर्सपेक्टिव से हमें हमने द हिंदू स्टार्ट की है. उन सभी साथियों के लिए जो मेरे जैसे बिगनर्स हैं, जिनको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत आती है, तो उन सभी के हेल्प के लिए, साथ ही साथ अपने इम्प्रूवमेंट के लिए हमने द हिंदू का सेशन स्टार्ट किया है. तो आई होप कि आप जरूर सपोर्ट करेंगे, साथ ही साथ मुझे सुझाव भी देंगे, साथ ही साथ सीखेंगे भी कि कैसे पढ़ा जाता है, और मेरे से जो कुछ भी कमी आती हो उसमें सुझाव देंगे, ताकि आप भी सीख सकें और मैं भी सीख सकूं और हम सभी साथ में मिलके काम कर सकें, ताकि ताकि हम सभी का बेटर रिजल्ट हो, बेटर स्किल हो हमारे पास चीजों को समझने का. तो आइए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर में. फ्रंट न्यूज जैसे कि इम्पोर्टेंट होता है, तो फ्रंट न्यूज को सबसे पहले. तो फ्रंट न्यूज में क्या है? एट एक्स ऑफिसर्स ऑफ नेवी गेट डेथ पेनाल्टी इन कतर. कतर में 8 जो अधिकारी हैं नेवी के, उनको डेथ पेनाल्टी, उनको मौत की सजा सुनाई गई है. तो उनमें क्या है, क्यों सजा सुनाया गया है और क्या है, अभी गुप्त रूप से उनको इसको पब्लिश नहीं किया गया, पब्लिकली अनाउंस नहीं किया है, लेकिन फिर भी उनको सजा सुनाई गई है. 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल. आपको भी, अगर आप देख रहे हैं, आप देखेंगे जिस वक्त, तो जैसे भी न्यूज़पेपर आपके पास हो ना हो, अगर न्यूज़पेपर आपको दिख रहा हो, तो जोर जोर से पढ़ना है. 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल who had been employed by a company in Doha were handed the death penalty by the local court in Doha on Thursday in an alleged case of uh, isopinase. The Indian government expressed shock at the verdict and said said all legal options were being explored एक्सप्लोर्ड. तो इसमें कहा गया है कि कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि इन्होंने, जो ये ऑफिसर है, इनके खिलाफ जो है जासूसी के खिलाफ कानून दर्ज किया गया था. अ, तो डेथ पेनाल्टी बाय ए लोकल कोर्ट इन दोहा ऑन थर्सडे इन इन एन alleged case of the espionage espionage and Indian government. The 8-man captain Navtej Singh Gill, Captain Saurabh Vasisht, Commander Parnedu Tiwari, Captain Birendra Kumar Verma, Commander Sukhwinder Pakala, और Commander Sanjeev Gupta, Commander Amit Nepal, and Sailor Rajesh have been custody of Qatari authorities since August 2022. The Court of First Instance of Qatar passed the judgment against them, according to the statement by India's Ministry of External Affairs. We are deeply shocked by the verdict of death penalty and are awaiting the details judgment. We are in touch with his family member and the legal team, and we are exploring the legal option. We attach high importance to this case and have been following it closely. We will continue to extend all secular uh, consular and legal assistance, the MEA statement said, adding that the India would take up the matter with
कतरीज अथॉरिटीज। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं कि लीगल पॉसिबिलिटी हो सके, छूट सके, और साथ ही साथ उनकी फैमिली के टच में है। We are in touch with family members and legal team, and we are exploring the legal options. हम legal option तलाश रहे हैं, and touch high important to the case, and we have been following closely. We are continue to extend all secular and consular and the legal assistance. Breaching secrets. The Indian nationals who were employed by the AI Dahra company in Doha were allegedly accused of breaching sensitive secrets at the time of their arrest last year. In their work with the Doha Global Technologies and Consultant Services, the former Navy personnel were responsible reportedly involved in training various security related serious service providers of the state of Qatar. The company was also involved in the producing high tech Indian origin and submarines submarines that stealth capabilities. The first trial in the case was held in March this year, followed by another in June. The men were granted consular consular access on multiple occasions in Indian ambassador to Qatar meet them recently as October 1. Both sides, however, have maintained a well secrecy secrecy over the case view sensitive little involved. तो गवर्नमेंट ने भी कहा है, और कतर की गवर्नमेंट ने कहा है कि ये सब सारे काम वेरियस रेटिंग में काम कर रहे थे, कंसल्टेंसी एज ए सर्विस दोहा के कंपनी के साथ। और उसमें बात कही गई है कि we men are granted consular access of multiple occasion, and the Indian ambassador to Qatar met them too recently as a October. High stack of relationship. Former Indian ambassador to Qatar, Deepa Gopalan, highlighted the improvement, important role that a large number of Indian migrants play on fostering fostering India-Qatar relation. The verdict could very adversely affect relation between the two countries. There are over 7 lakh Indians in Qatar. तो इंडिया के फार्मर इंडियन एम्बेसडर हैं इन कतर टू डूहा, तो कतर में लगभग 7 लाख जो है इंडियंस वहां पे वर्क करते हैं, वहां पे जॉब करते हैं। तो ऐसे में वहां की रिलेशंस, इंडिया और कतर के रिलेशन में गड़बड़ी आ सकती है। एंड वी हैव टू क्लोज इकोनॉमिक टाइज। हमारे पास जो रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी, आर्थिक जो संबंध है, हमारी संधि, आर्थिक संधि। The Indian government has been following the case closely without doubt, but would need to take it up at the highest level of ensure their lives are saved. She said the verdict is that first major crisis to hit the India-Qatar relationship, which has generally remained steady. So far, Prime Minister Narendra Modi visited Doha in June 2016, followed by his meeting with the Amir of Qatar of sidelines of UN General Assembly in
New York in September 2019. External Affairs Minister S. Jaishankar also visited Qatar in February 2022, according to MEA. Qatar, Qatar is largest supplier of the LNG of India to India. LNG Qatar जो है LNG supplier में सबसे highest LNG supply करता है, which accounts of over 48% of the India's global LNG import, जो कि 48% है जो ग्लोबली इंपोर्ट करता है इंडिया। इथेन, प्रोपेन, प्रोपिलीन और अमोनिया, यूरिया एंड पॉलीएथिलीन फ्रॉम कतर। कतर से जो इंपोर्ट करता है वो एथिलीन, प्रोपिलीन और अमोनिया, यूरिया एंड पॉलीएथिलीन कतर से इंपोर्ट करता है। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्या होना चाहिए? द वर्डिक्ट ड्रीव स्ट्रॉन्ग रिएक्शन फ्रॉम अपोजिशन political party as well. The Indian Congress has noted the uh, greatest gives stats and shock the most disturbing development of Qatar regarding 8 former officers of the Indian Navy, said Congress Communication Chief Jairam Ramesh. It hoped to express the it government of India will use its diplomatic and political leverage with the Qatar government in maximum to ensure that officers have full recourage up to appeals to also do the until most get the relations of earliest he ended. तो अपोजिशन ने भी सवाल उठाया और आशा जताया है कि इंडियन गवर्नमेंट जल्द से जल्द कुछ एक्शन लेंगे और जो एक्यूज्ड उनको फ्री कराएंगे। और इम्पोर्टेंट न्यूज तो फिर बाकी सब पॉलिटिकल न्यूज है। एज वी नो दैट फाइव स्टेट्स कंडक्टिंग ए विधानसभा इलेक्शन। तो 5 राज्यों में इलेक्शन की वजह से सारे न्यूज जो है सारे न्यूज़पेपर इलेक्शंस को ही कवर कर रहे हैं। इलेक्शन मराठा स्टेट इन प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन वेलफेयर एफर्ट्स। तो ये सब आर्टिकल हमारे यूज के नहीं है, तो हम सीधा चलते हैं 10 नंबर। वॉइस ऑफ गाजा अंडर ऑक्यूपेशन। गाजा में जैसे अभी इसराइल फिलिस्तीन के बीच जो विवाद हुआ है आफ्टर अटैक हमास 7 अक्टूबर। तो 7 अक्टूबर को जैसे हमास ने इसराइल पर अटैक किया और वहां के लोगों को प्रताड़ित किया, वायलेंस किया, और तो अब जो एक्शन ले रहे हैं इसराइल, उसमें आया है कि while the conflict reigns in Gaza amidst allegations and counter allegations, and in the amidst unabashed American political in relevant to recall what are the senior leaders of Hamas, Moussa Abu Mozak, told the Yorker, New Yorker magazine October 13 about the political approach। उन्होंने कहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट रेंज है उस पर जो हमास के जो सीनियर है, उन्होंने कहा कि हमने पॉलिटिकल अप्रोच वी रोल्ड डाउन ऑफ द पाथवे टू गेट सम ऑफ राइट। हमने पॉलिटिकल राइट के लिए हमारे राइट के लिए पॉलिटिकल राजनीतिक रास्तों के लिए और नॉट ऑल ऑफ we rolled down all of the
pathway to get some of our rights, not all of them. We knocked, we knocked on the door of reconciliation, and we aren't allowed in. हमने सारे दरवाजे खटखटाए शांति के, हमारे अधिकार के, लेकिन हमें अलाउ नहीं किया गया. वी नॉक्ड ऑन द डोर ऑफ इलेक्शन एंड वी वर डिप्राइव्ड. हमने इलेक्शन का भी रास्ता अपनाया, लेकिन हम हार गए. हमें सफलता नहीं मिली. एंड ऑफ द We knocked on the door of political documents of the whole world. We said we want peace. उन्होंने कहा कि हमने उनसे कहा कि हम शांति चाहते हैं. And give us some right, but they didn't let us. And he added, tried to every path. उन्होंने कहा, जो हमास के जो मेन है, सीनियर्स हैं, एवरी पाथ, वी ट्राइड एवरी पाथ, हमने हर संभव रास्ता प्रयास किया. वी डिडंट फाइंड द वन पॉलिटिकल पाथ टू टेक आउट ऑफ दिस morass and free us from occupation. We spoke to Americans, European, and all the people in under order to achieve the Palestinian people's right without any benefits. हमने सभी अमेरिका, यूरोपीय यूनियंस और सभी लोगों से बात की कि जो पैलेस्टीनियन है उनके राइट दिया जाए विदाउट किसी बेनिफिट के. नथिंग हैज बीन अचीव्ड टुवर्ड इन आइडिया टू स्टेट फ्रॉम 1948 से लेकर आज तक. until today we are people under the occupation. हम आज तक जो है अधिकृत के क्षेत्र के अंदर हैं. तो इन्होंने अपना बताया. और फिर साथ ही इसमें लिखा गया है फेलिशियन के लिए क्या क्वेश्चन पे पर्शियन टू प्रोग्रेस ऑफ थॉमस फ्राइडमैन ऑन न्यू यॉर्क टाइम अक्टूबर 16 2023 sheds light on the perspective. If Israel goes into Gaza now, it will blow up the Abraham Accords. अगर इजराइल अटैक करता है तो अब्राहम जो समझौता है वो टूट जाएगा. फर्दर डिस्टैब्लिश टू ऑफ अमेरिका मोस्ट इम्पोर्टेंट एलीज, जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है इजिप्ट और जॉर्डन के लिए, टू मेक normalization with the Saudi Arabia impossible, huge strategic setback. It will also enable Hamas to really fire of the West Bank and get the separate war going there between Jewish settlers and Palestinian. Altogether, it will play directly into Iran's strategy of shaking Israel into imperial overstate and the way weakens and Jewish democracy from the within. अगर इजराइल हमास पे अटैक करता है तो अब्राहम समझौता इससे ब्रेक थ्रू होगा. और इससे जो है ईरान के साथ और इजिप्ट, मिस्र और जॉर्डन के बीच, जॉर्डन और सीरिया के बीच विवाद और उत्पन्न हो सकता है. फ्राइडमैन ने ये भी कहा, while Biden is right to support Israel, he must get clear answer from the Netanyahu on before to let Israel, once Israel topples Hamas, who will govern. अगर ऐसा करता है इजराइल तो वहां हमास जो गाजा पर सवाल होगा कि वहां पे गवर्न कौन करेगा, राज कौन करेगा, शासन कौन करेगा. इफ इजराइल rebuilding of infrastructure that it will destroying. अगर इजराइल वहां पे रीस्ट्रक्चर करता है, गाजा पर अपना आधिपत्य जमाता है, तो उसको फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से रीबिल्डिंग करना पड़ेगा जो कि उसने डिस्ट्रॉय किया है. एंड इफ नॉट, यदि वह ऐसा नहीं करता है, हाउ लॉन्ग डज इजराइल इंटेंड टू अलाउ द humanitarian crisis to the unfold southern Gaza? Does Israel
का Israel plan build to settlement in Gaza? Does Israel respect Gaza borders? Does it have plan to help rebuild the Palestinian authorities in the West Bank? U.S. President Joe Biden was emphatic in his condemnation of Hamas to responsibility. तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने जो हमास के द्वारा हॉस्पिटल को डिस्ट्रॉय किया था उसकी आलोचना किया गया था जो बाइडन के द्वारा। और तो उनको बोला गया था कि सेंटर स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज ओपिनियन ओनली वे टू कन्विंस टू what to do take sides it's establish some from international investigation। अब जरूरत है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन बढ़ाया जाए और साथ ही एक शांति के लिए बहाल किए जाए नेशन इंडिविजुअल और द क्रेडिबल जो आपसी जो सहमत हो आपसी आपसे एक दूसरे के लिए बेनिफिट हो क्लियरली हेयर टू मेरिट्स ऑफ मोजाका क्लेम्स। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में किसी का भी साथ देना किसी का विकल्प देना गलत होगा। हार्शली रिसॉर्ट पार्शियली में नॉट बी द ऑप्शन सही विकल्प नहीं होगा। तो ये था गाजा और इससे संबंधित मुद्दे। इसमें और भी आर्टिकल आएंगे हम पढ़ेंगे ताकि गाजा और गाजा पट्टी संबंधित इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद को और अच्छे से समझ सकें। अब जो मणिपुर में लॉन्ग लास्टिंग अबाउट 5 मंथ्स हो गए वहां पे लगातार वायलेंस हो रही है तो मणिपुर नीड टू प्लेटफॉर्म पर संवाद। अब वहां जरूरत है कि बात हो वहां संवाद ताकि संवाद के रास्ते कोई रास्ता निकल सके। Unique features of Indian intellectual tradition is that the point of view of the opponent uh, Purvaraksha must be taken serious not because one loves the opponent but because one need to understand the opponent better. If one has wins argument that how the tradition of Samvad dialogues constitutes a major component of this long-standing tradition. The people, opposite in corruption and violence, which are the outcomes of a monologues monologues processed by those who own the truth. The latter are trend can be witnessed all over the globe across historic today. It is found among uh, conflicting nationalities, religious community, and ethnicity. Ethnicity, whether it is Israel, no, or Manipur. As Gaza beats, there are no objective statement or truth that can explain large scale violence. तो काफी टाइम से जो वायलेंस हो रहे हैं उसके क्राइसिस ऑफ स्टेट द मणिपुर क्राइसिस हैज बीन रनिंग फॉर ओवर 5 मंथ्स 5 महीने से ज्यादा हो जा रहे हैं एंड वी आर नाउ एवर क्लोज अप ट्रूथ। लेकिन फिर भी अभी तक हम उस सत्य से दूर हैं एंड वाई आर वायलेंस हम ये भी नहीं जान सकते ये उस सत्य से दूर है कि ये वायलेंस हो क्यों नहीं वाई आर हैपनिंग वाई द वायलेंस हैपेंड एंड विच इज स्टिल और क्यों अभी तक were running while many civil society bodies on other sides carried away by the violent turn in event। जबकि सारे सिविल जो सामाजिक सोसाइटी बॉडीज हैं उन्होंने इस बारे में चिंता जाहिर की है लेकिन फिर भी क्यों ये वायलेंस हो रहे हैं इसके बारे में अभी तक आंसर का पता नहीं चला है उस कारण का पता नहीं चला है। तो क्या हो आगे का रास्ता तो नेगोशिएशन किया जा सकता है फोकस एमिडिस्ट दीज कॉम्प्लेक्स नैरेटिव्स देयर इज ए नीड टू अचीव द होलिस्टिक ट्रूथ। जानने की जरूरत है होलिस्टिक ट्रूथ वास्तविकता है क्या ट्रूथ
truth preferably preferably must be agreed by all. There is not only the need for the dialogues but also a verification of the fact claimed in these narratives. This search for the holistic truth cannot be done without the presence of the contending parties. The narratives of the hardness are extremely problematic. For this are shaped by the politics of exclusion, which allowed which allowed little rooms for the dialogues on the country coexistence, the matrimonial bond, and spatial sharing among the ethnic communities of reality of life and state. People seem to target the long existing multicultural life of Manipur while having been dragged into a violent politics of the present. Dialogue does not necessarily mean political agreement. Rather, it is about cross checking each other claims to counterclaim. ne- negotiated truth is possible. जो कुछ भी सत्य है उसको जाने और नेगोशिएट करें सभी एथनिक ग्रुप के साथ when the contrasting parties recognize amicably argument and the soon offense of outcomes. India intellectual tradition of संवाद, भारत की पारंपरिक जो ट्रेडिशन परंपरा रही है संवाद की, is an investigation to opens with truth. This require informous, enormous moral strength in the practitioners of dialogues. As a result can be peaceful and long lasting. It is the attempt to understand the other point of the view and politics better. It is It is also about fearing of oneself to a committed truth, letting it open a security by the open other parties. Manipur need to platform for samwad, however small, amidst and violence and mistrust. एक संवाद करने की जरूरत है ताकि उसको रिलेशन वहां की राजनीतिक स्थिरता आ सके, वहां पे लॉन्ग लास्टिंग पीस इस्टेब्लिश हो सके. तो एक डायलॉग की बात करने की और एक रिसर्च करने की नीड है कि वास्तव में ये वायलेंस हो क्यों रहे हैं और इसके पीछे कारण क्या है. तो ये था आज का मणिपुर वाला मुद्दा. इजराइल और हमास फिलिस्तीन के बीच जो विवाद है वो, और साथ ही साथ आज हम एक भूटान वाई इम्पोर्टेंट एक शॉर्ट वाई आर द चाइना भूटान बाउंड्री स्टाक सिग्निफिकेंट. तो उनके बीच जो वार्ता हुई है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. तो हम जानते हैं कि भूटान हमारा जो एक पाथवे है जिसको बोलते हैं सिलीगुड़ी, एक चाइना जो भारत और नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला रास्ता सिलीगुड़ी जिसको बोलते हैं, उस पे वो इसके थ्रू जो है भूटान के थ्रू चाइना उसके सिलीगुड़ी के नजदीक आना चाहता है और सिलीगुड़ी से पूरे मैपिंग कर सकता है, हमारे ऊपर वो निगरानी रख सकता है कि इंडिया में चल क्या रहा है वो किसी भी तौर पर. तो ये टॉक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि आगे क्या स्टेप लेने वाले हैं, ये हमारे लिए स्टेप होना चाहिए इम्पोर्टेंट. तो आगे और भी न्यूज आर्टिकल्स इसके बारे में आएंगे तब हम और चर्चा करेंगे. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में. और दोस्तों सुझाव बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो, इम्पोर्टेंस है कि नहीं, और साथ ही ट्राई करिएगा कि आप भी खुद से पढ़ें न्यूज़पेपर्स और साथ में उसको एक्सप्लेन करें और
ट्राई करें कि बेटर अंडरस्टैंडिंग वो करें और लिंक बनाकर। तो आज जो कुछ भी हमने पढ़ा इंटरनेशनल इश्यूज के बारे में पढ़ा, जो इजराइल, मणिपुर और इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो ये हमने जो पढ़ा मणिपुर वाला मुद्दा, वो इंटरनल इश्यूज हो सकता है, सोसाइटीज में भी काम आ सकता है। और जो गाजा इजराइल के साथ वो हमारा इंटरनेशनल इश्यूज विद इंटरनेशनल रिलेशन विद इजराइल एंड फिलिस्तीन एंड कतर वाला जो न्यूज आईआर के साथ इसको लिंक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और सुझाव जरूर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में बताइए।